Just 10 seconds. Yeah. Alka ma'am, you can start now. Okay, ma'am. तीन रंग का वस्त्र wait. नहीं ये ये क्या हो गया? I have to wait, Himanshi ma'am. Ma'am, we are live. Yeah, start. तीन रंग का वस्त्र नहीं ये तीन वस्त्र रंग का वस्त्र नहीं ये ध्वज देश की शान है, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिल का, हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. It's my proud privilege to welcome everyone who has joined us on the most auspicious day, the celebration of 74th Independence Day, on the behalf of Presidency the International School. Freedom is the most precious gift of the God to us. It is rightly said, carried with care, courted with pride, dipped in love, flying in glory, moments of freedom in the shade of joy. Today, we all are gathered here to celebrate the Independence Day and to remind the valiant freedom fighter who fought selflessly and even sacrificed their life for our country to attain freedom. It was a relentless struggle to our countrymen and led to the birth to the independent India. We wish you a very happy Independence Day on the behalf of Presidency the International School. Now, moving forward, I take pride in getting this opportunity to welcome our chairman, sir, Mr. Y.P. Puran, sir, the architect of Presidency the International School. So, you are such an inspiring personality and always help us to reach the pinnacle of success. Thank you so much, sir, for giving your precious time. Thanks a lot, sir. It's my great honor to welcome our manager, sir, Mr. Manoj Sharma. Sir, you are a person with a great vision. Sir, your selfless service is a big example for us. You are an exemplary leader for us. Your words, your encouragement, sir, your guidance that keep us sane while chasing the deadline. So you're indeed a blessing for us. A million of thanks for being with us. Thank you so much, sir. We also honored to have among us like our mentor, Mrs. Pallavi Sharma, the principal of Mamta Modern Senior Secondary School, Delhi. So, ma'am, you always guide us and your untiring efforts gives a new direction to us to difficult circumstances. Ma'am, you are an excellent orator and an exemplary leader. Ma'am, your guidance, your motivation help us at every moment. Thanks a lot for being with us, ma'am. Now, put your hands together to welcome our Honorable Principal, ma'am, Miss Shalini Malhotra. That she is the one who plays the vital role in educating young generation and shaping their personality with the utmost skill. Ma'am, you are the role model for us as a progressive thinker. Ma'am, you instill confidence and nurture our skills. Thanks a lot, ma'am, for supporting us. Now, we would extend our warm welcome to the chief guest of our today's program, Dr. Roop Singh, the managing director from the City Nursing Home, Bhiwadi. Sir, you are not only a doctor by profession, but a saint by the soul and immense affection to the nature also. Like Dr. Roop Singh is a highly populated personality in Bhiwadi. He has been active in many social fields. He himself has fought with the corona and came out like a warrior. Even at that time, he gave the virtual treatment to the corona patients by conducting webinars and uploading the videos. So, yet you are spreading the message of godly meditation, Ayush immunity food with the immense positivity. So, I would also like to share that, sir, he is a plasma donor also. Thank you so much, sir, for being with us. Thanks a lot. Thank you so much, sir, for being with us. Without taking so much time, I would like to invite our Honorable Principal Ma'am to welcome our esteemed management and our the guest of honor. Yes, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Alka ma'am. Happy Independence Day to all the parents
children, our esteemed guests, all those who have joined us not only on this live webinar, but also through the Facebook. It is my honor to welcome our chairman, sir, Mr. Y.P. Purang, our manager, sir, Mr. Manoj Sharma, Mrs. Pallavi Sharma, principal of Mamta Modern School, Delhi, and our chief guest today, Dr. Roop Singh. We are indeed honored and privileged that you have always stood by us like a family member, and you are here on this very auspicious day. Dr. Roop Singh is a well-known personality in Bhiwadi, loved and admired by all. As Alka ma'am said, he's a warrior. He's a true warrior. He's a frontline warrior, and he's also a warrior against the coronavirus. He has successfully defeated it, and even through the time when he and his son, Dr. Kaushik, were infected by coronavirus, his videos of motivation kept us motivated. We were more worried, but whenever we saw his video, he was always smiling. Thank you, sir. Your smile keeps us happy, keeps us motivated. Today is a difficult time. These are challenging times for young children who are away from their school, from their beloved teachers, from the playground that they play in. And in such times, sir, we have tried very hard to provide unhindered education and learning for our young children. Many a time, children ask us, what is patriotism? We are only children. We are 13, 14, 16. How do we become patriotic? So therefore, students of Presidency International School today have taken up the topic, working towards your duty is patriotism. Working diligently, performing your duty is patriotism. And this is what they have taken as a motto this year, because they see in you a wonderful person who performs his karma so well. Thank you so much, sir. And let us proceed further with this function. Thank you so much. दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना, सिर हमेशा ऊंचा रखना, जब तक तुझमें जान है, जब तक तुझमें जान है। As we are celebrating the Independence Day virtually for the first time, so let's close our eyes and remember the struggle and the sacrifice those who dreamt the India a great country. Now we will have the auspicious flag hosting ceremony as a tribute to our motherland. Let's feel one with our mother nation. Let's be united with the spirit of the love and patriotism. Now we have flag hosting ceremony as a tribute to our nation by Honorable Manager Sir, followed by the outstanding digital view of March Past by the students of Presidency the International School. May I request everyone kindly rise for the national anthem. May I request everyone kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। Thank you.
सलामी जय। What a synchronization. Our marching contingent has always shows their mentees years after years. We are the winners for last 10 years of UIT Republic Parade and the Independence Parade. तीन रंगों का सम्मान हमारे दिल में है। देश की खातिर जिए अरमान हमारे दिल में है। कौन कर सकता हमें एक दूजे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान हमारे दिल में है। We are thankful to our freedom fighters who gave their lives and made great sacrifices. That's why we are here together to celebrate our Independence Day. This day is dedicated to our nation's guardians. So, to fulfill your heart with the patriotic fervor and to uplift your souls with the rhythm divine, the students of Presidency, the International School, are coming right on your screen with thrilling dance performance. So let's welcome them. वतन वतन मेरे आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो वतन मेरे वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। वतन मेरे वतन मेरे वतन। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है, ये शादी का गीत है, ये एकता का राग है। भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंजे है जो जो रागिनी सब
What a heart-touching dance. Surely it was a spellbound performance. Struggle is a never-ending process. Freedom is never really won. You earn it and win it in every generation. Muskan Rathod would like to express her emotions on Independence Day. Here she is. So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole world. A very pleasant morning to one and all. Esteemed dignitaries, respected teachers, and all my dear friends. Today I, Muskan Rathod from Presidency of the International School to celebrate the 74th Independence Day of our nation. Now is the time. Now is the time to be inspired by our great freedom fighters, whose contribution to our nation is indefinable. Unless we, the future generation of our nation, does not cooperate and coordinate with our government and nation, nothing will happen. We must be loyal towards our country and follow government's instructions. Because in today's world, patriotism not only means your love towards your country, but also your honesty, your loyalty, and your commitment to serve for your nation whenever required. Our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji's campaign of Go Vocal for Local and Atmanirbhar Bharat are recent initiative taken by our government. We must promote it. Even the one who is promoting the Swachh Bharat mission is living the spirit of patriotism. We have to balance and strengthen our economy by exporting too. And I am sure, once more we will gain the title of the Golden Bird, and our wealth will be our forever. From our great freedom fighters to our present day doctors, soldiers, nurses, police, and sweepers. From our talented scientists who are in the race of making COVID-19 vaccine in the whole world, to our beloved teachers. Even the one who is planning to run her own small startup in the project of Make in India is a true patriotic person. We have to pledge today that we will not let the sacrifices done by our great freedom fighters in vain. We will not let the sacrifices done by our freedom fighters in vain. We must respect them. With that, I once more wish you and your family a very all the best on the eve of Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Muskan. Surely the thought-provoking ideas.
ना जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर. It has been 74 years past. We got independence. Our leaders shed their blood for getting freedom. Even they sacrificed their lives for our country. But today, our younger generation usually ask, what patriotism is? What patriotism is? Today, the students of Presidency, the international school, wish to define patriotism. For us, patriotism means duty towards work. Here we are. चलो आज फिर से वो नज़ारा याद करते हैं, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद करते हैं, जिसमें पढ़कर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों की वह धारा याद करते हैं. सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महायज्ञ का प्रारंभ रानी लक्ष्मीबाई एवं मंगल पांडे ने किया था. परंतु आज के इस परिवेश में घर बैठकर बातें करने, सड़कों पर नारे एवं जुलूस निकालने, सरकार की कमियां निकालने और आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा. आज के इस विषम परिस्थिति में चिकित्सक, शिक्षक, सफाई कर्मचारी, वैज्ञानिक सभी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. वे अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं. वे पूरे दिन, वे 24 घंटे लोगों के लिए तत्पर रहते हैं. वे आज के समय के योद्धा व वीर हैं. हमें तहे दिल से इनका सम्मान करना चाहिए. अभी जाओ, मैं आपको बाद में दे दूंगी, ठीक है? थोड़ी देर रुक जाओ. So students, get ready with your books and notebooks. Open chapter number 1. Yes, children. मम्मा मेरी टाई कहाँ है? बेटा अभी रुक जाओ, मैं क्लास ले रही हूँ. मम्मा बता दो ना, मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है. अरे अंदर रूम में रखिए, ले लो जाके वहाँ से. और आप मुझे डिस्टर्ब मत करना. स्टूडेंट्स, मंडे को आप लोगों का टेस्ट है, याद होगा आप लोगों को, है ना? चलो तो फिर हम आज से ही अपना रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं. ओपन पेज नंबर 15 ऑफ योर बुक. यस, मैंने आप लोगों को बोला था रिवाइज करने के लिए. ओके, वेरी गुड. बेटा मैं थोड़ी देर में
बता दूंगी, अभी आप जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कौन सा चैप्टर आ रहा है? मम्मा मेरे लैपटॉप में नेटवर्क इशू हो रहा है, अपना फोन दे दो ना। मैं अभी क्लास ले रही हूँ ना, अभी मुझे होमवर्क क्या करना है, आप दूसरा फोन ले लो प्लीज। ओके मम्मा। आशु बेटा इधर आ जाओ, यहाँ पे बैठो, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। ये वाला ही पढ़ूंगा मैं। ओके, आपको ये पढ़ना है और ये लो आपकी ऑनलाइन क्लास ले लो अभी। ओके, वेरी गुड, सिट प्रॉपर्ली। क्या चल रहा है? और कुछ नहीं चल रहा, कोरोना चल रहा है भाई। हाँ, हम तो अपने घर में सुरक्षित हैं। सुरक्षित? जो सिपाही हमारे दिन रात मेहनत करते हैं उनका क्या? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। नहीं भाई, हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। बेटा, आपको पता है ना, अभी कोरोना जैसा महासाल चल रहा है, तो आपको ऐसे समय में हमारे गली मोहल्लों को साफ रखना चाहिए, ना कि ऐसे कचरा फैलाना चाहिए। आपको हमारे जैसे लोगों का साथ देना चाहिए, समझे? आओ, वादा करें अपने देश से कि हम अपने देश को स्वच्छ और साफ रखेंगे। जय हिंद। Your tea, sir. Thanks, keep it up. Your lunch, sir. Keep it up. So, you have not had your lunch yet. I don't have time at all. My country is facing a big pandemic, COVID-19. है इनको कोरोना हो गया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इनके दूर रहो। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब, मुझे 3-4 दिन से खांसी आ रही, बुखार भी है, ठंड लग रही है। हो सकता है आपको कोरोना वायरस हो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपका इलाज करूंगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मास्क लगा के रखें, नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। डरने की कोई बात नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आग बहुत सी बाकी है। भारत क्यों तेरी सांसों के स्वर आहत से लगते हैं। अभी जियाले परवानों में आग बहुत सी बाकी है। क्यों तेरी आंखों में पानी आकर ठहरा ठहरा है, जब तेरी नदियों की लहरें डोल डोल मदमाती है। जो गुजरा है वह तो कल था, अब तो आज की बातें हैं, और लड़े जो बेटे तेरे राज काज की बातें हैं। चक्रवात पर भूकंपों पर कभी किसी का जोर नहीं, और चली सीमा पर गोली सभ्य समाज की बातें हैं। कल फिर तू क्यों पेट बांध कर सोया था, मैं सुनता हूँ जब तेरे खेतों की बाली लहर लहर इतराती है। अगर बात करनी है उनको कश्मीर पर करने दो, अजय आहूजा अधिकारी नैयर जब्बर को मरने दो। वो समझौता ए लाहौरी याद नहीं कर पाएंगे,
भूल कारगिल की गद्दारी, नई मित्रता गढ़ने दो। ऐसी अटल अवस्था में भी कल क्यों पल पल टलता है, जब मीठी परवेजी गोली गीत सुन बहलाती है। चलो ये माना थोड़ा गम है, पर किसको ना होता है। जब रातें जगने लगती हैं तभी सवेरा होता है, तभी सवेरा होता है। जो अधिकारों पर बैठे हैं वो उनका अधिकार ही है। फसल काटता है कोई और कोई उसको बोता है। क्यों तू जीवन जटिल चक्र की इस उलझन में फंसता है, जब तेरी गोदी में बिजली कौन कौन मुस्काती है, जब तेरी गोदी में बिजली कौन कौन मुस्काती है। जय हिंद, जय भारत। Our children has taught us a true meaning of patriotism. Surely they taught us duty towards work is patriotism. So here it is well said, one who sacrifices his life for good cause and live for others is remembered lifelong. ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। गर्व से कहें एक हैं हम एक हैं। Fervor and true love for nation is limitless. Students of presidency also tried to show their true love for their beloved country, as talent has no bars. Let's see how the students of presidency have parallelly prepared for Independence Day. मदद के लिए हाथ रहे, पूरा भारत साथ रहे। मदद के लिए हाथ रहे, पूरा भारत साथ रहे। रखनी होंगी दूरियां, पर दिल से हर कोई पास रहे, पर दिल से हर कोई पास रहे। ये दौर दोबारा आए ना, कहीं कोई दिया बुझ पाए ना। हम घर से ही लड़ेंगे, ये दौर से आगे बढ़ेंगे। हमसे रहे तो रहेगा से हम और हमारा देश। हम सेफ रहे तो रहेगा से हम और हमारा देश। हम और हमारा देश। देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, मेरा देश। देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, मेरा देश। रखना है सबको ख्याल, कहीं कोई उठाए ना सवाल। सहयोग दे समाज को, प्रशासन पे विश्वास हो। हम घर से ही लड़ेंगे, ये दौर से आगे बढ़ेंगे। हम सेफ रहे तो रहेगा से हम और हमारा देश। हम और हमारा देश। हम और हमारा देश। मदद के लिए हाथ रहे, पूरा भारत साथ रहे। मदद के लिए हाथ रहे, पूरा भारत साथ रहे। रखनी होंगी दूरियां, पर दिल से हर कोई पास रहे, पर दिल से हर कोई पास रहे। ये दौर दोबारा आए ना, कहीं कोई दिया बुझ पाए ना।
घर से ही लड़ेंगे, ये दौर से आगे बढ़ेंगे। हमसे रहे तो रहेगा सिर्फ हम और हमारा देश। Surely our students tried their best to show their love towards their country. Our love for our nation is worthiness. Our love for our people is endless. All we desire for our country is happiness. On this very note, I would like to say, despite such a tough time, our principal ma'am ensured that light of knowledge reaches to each and every child of presidency. It is her unflinching faith and belief in the potential of students and the staff that touched and moved each of us to scale new heights. Ma'am, surely you are the leader of excellence. It is my utmost pleasure and honor to invite our principal ma'am. Here to you, ma'am. Thank you so much, Induna. Thank you, ma'am. Yes, these are tough times and we have to keep social distancing, because as the song said, Dil Hamesha Paas Rahe. We can never be away from our children. We can never be away from each other, because as we say, we are nation builders. The teachers have a big duty upon their shoulder. We are referred to as nation builders. How can a builder ever rest? Salute to all the teachers, to all the doctors, to all the frontline warriors who are performing their duty. And as the students of presidency today have shown, your duty towards your work is patriotism. Whether you are a doctor or a teacher or a frontline warrior, but we all have to perform our duty. And if we do that, we are patriotic as the soldier who takes the bullet on the front. Thank you, children. Very well presented. Now, during these times, we have been engaging in various activities. Our work has been non-stop. As we say, the nation builder can never rest. So the school has been working through various activities. Even if we cannot be together personally, we have ensured our children have all the exposure that we would have given them in normal circumstances. And therefore, we have compiled all our activities and work in the past months in the form of a newsletter. May I now request our chief guest, Dr. Roop Singh, to please inaugurate our newsletter. Sir, we have come up with a digital newsletter for the first time as Jaisa Desh Vaisa Bhes, so Jaisa Waqt Vaisa Samay. So we have come up with a digital newsletter. I request you to give permission for the inauguration of our newsletter. Sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. And we will be sharing this newsletter with all our friends, including yourself, for you to go through and see what our children have been doing. And they are unstoppable. Nothing can stop them. Now, I would request our chief guest, Dr. Roop Singh, who's a great motivator. He's a person who has motivated and is a role model for all of us. As I said earlier, he's not only a frontline warrior, he's a warrior also who has personally defeated the coronavirus. Sir, may I please invite you to bless and motivate the children on this occasion. Dr. Roop Singh, our honored chief guest for today. आदरणीय प्रेसिडेंसी परिवार के चेयरमैन सर, मैनेजर सर, प्रिंसिपल पल्लवी मैम, शालिनी मैम,
इस कार्यक्रम के संचालक और प्रेसिडेंसी परिवार के समस्त शिक्षकगण, बच्चे जो बहुत ही जोश के साथ अभी अपने स्कूल के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और इससे पहले रोटरी और उससे पहले अपने अपने घर और सोसाइटियों में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। आपकी बच्चियों ने एक बहुत प्यारे गाने पे एक नृत्य भी किया और सुबह भी मैं एक कार्यक्रम में सुन रहा था कि ये राजा तेरी सांसों पर तेरे वतन का भी हक है। यानी अगर इश्क मोहब्बत की भाषा में बात करें तो इस झंडे को कैसे चूम लेते हैं हमारे सिपाही जब चाइना की बॉर्डर पर निहत्तों को भी लड़ना पड़ता है और अपनी एक निर्जन सी भूमि को बचाने के लिए भी लहूलुहान होके तब तक लड़ते हैं जब तक उनकी जान ना चली जाए। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और प्रेसिडेंसी परिवार को मैं जानता हूं कि दिल्ली से लेके यहाँ तक मनोज जी और उनके सभी इस परिवार के टीचर साहिबान किस तरह से स्पोर्ट्स के माध्यम से और एजुकेशन के माध्यम से एक एक बच्चे में देशभक्ति का संस्कार भरते हैं। मैं आपके स्कूल से बहुत इम्प्रेस हूं और बहुत जुड़ा हुआ भी हूं और अगर मेरे बस में होता तो मैं वहां पर टीचर के लिए एप्लीकेशन देता कि काइंडली अपॉइंट मी एज ए टीचर। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस स्वतंत्रता दिवस की। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुबह कह रहे थे कि माना कि कोरोना है, माना कि हम अब वर्ल्ड के हाईएस्ट कोरोना पॉजिटिव केसेस के बीच में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की जिम्मेदारी भी हमारे नेशन बिल्डर्स यानी हमारे टीचर्स पर है। मुझे खुशी है कि प्रेसिडेंसी में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें देशभक्ति का सिलेबस भी खून की नस नस में भरा जाता है और इसीलिए मुझे बहुत बहुत पसंद है मैम आपका स्कूल। कुछ गाने ऐसे आते हैं, कभी कभार आते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, जैसे आपकी एक बच्ची गा रही थी कि मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा खून बहे। कभी कभी लगता है कि ये शायर ऐसे ही लिख देते हैं या सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नस नस में देशभक्ति बहती हो। हमारे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट आपके इस ग्रुप में मैं देख रहा हूं, इतनी प्रतिभाशाली टीचर्स हैं, इतने बेहतरीन विद्यार्थी और खिलाड़ी हैं, पर कभी कभी मुझे लगता है कि स्कूलों के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी ही दो ऐसे अवसर रहे हैं जब देशभक्ति को ठूसा जाता है उनकी नसों में। बाकी टाइम पर तो माता पिता और पूरी सोसाइटी उनकी नसों में ये ठूसती है तुम्हारा नंबर कितना, तुम्हारी परसेंटेज कितनी, तुम्हारा कैरियर कितना, तुम्हें जाना कहाँ है। और बच्चे भी लगभग इसी मनोवृत्ति के होते गए हैं कि द मोमेंट आई गेट ए चांस टू बी अपॉइंटेड फॉर फॉरेन कंट्रीज आई विल गो विद इन ए मिनट। वापस आता हूं, ऐसे चैलेंजेस ही हमारे नेशन बिल्डर्स के लिए नए निर्माण का समय होता है। आपने मेरे कोरोना फाइट का जिक्र किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं, पर इसी फाइट ने हमें लगातार ये प्रेरणा दी कि जो लोग भय से ही मरे जा रहे हैं, जिनको जुकाम भी नहीं है, जिनको एसिम्प्टोमेटिक बीमारियां हैं घर पर, उनसे बात करना ही इलाज है। और 1 घंटे का सेशन आज हमारा 129वां दिन होगा, शाम को रोज कंडक्ट करते हैं देश के बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ। इस छोटे से गांव भिवाड़ी में जो मॉडल तैयार किया गया उसको चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर ने सेकंड में फॉलो किया, फिर कोटा कलेक्टर ने किया, फिर हमारी आईएमए की राजस्थान की सारी यूनिट्स ने किया। हम सोच रहे थे हम तो एक छोटे से गांव के निवासी हैं, हमें कौन फॉलो करेगा। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि वी आर गोइंग टू डिजिटलाइज हेल्थ, जैसे एक आधार कार्ड है वैसे ही हेल्थ का कार्ड होगा आपकी सबकी, स्कूल से लेके बाद तक की स्कूल की रिपोर्ट, हेल्थ चेकअप रिपोर्ट विल बी सेव्ड इन ए क्लाउड। आई वाज वेरी हैप्पी। हमें नई चुनौतियों के अनुसार नया ढलना ही है, लाख मुसीबतों के बावजूद भी वीर बहादुर बनाना ही है। 300 चेकअप हो रहे थे पर डे जब कोरोना स्टार्ट हुआ इंडिया में, चुनौती थी। कुछ पता नहीं था कि कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। 3 लैब थी जहां जांच होती थी, आज 300 की बजाय हम 7 लाख टेस्ट कर रहे हैं पर डे, थैंक्स टू द हेल्थ वर्कर्स ऑफ इंडिया। 3 लैब से आज हमारे पास में 1,500 लैब है ऑल ओवर इंडिया। एक बचने की उम्मीद नहीं थी, 70% लोग तो रिकवर हो गए हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव था। अदर एक्टिव केसेस माना कि भिवाड़ी में आज की तारीख में 1,500 से ज्यादा लोग हैं जो पॉजिटिव हैं।
ये हमारे लिए कोई प्राइड की बात नहीं है कि अलवर जिला टॉपर है राजस्थान का, और ये हमारे लिए प्राइड की बात है कि इस सब के बावजूद भी हम जिंदा हैं, हमारे स्कूल्स की स्पिरिट जिंदा है, और जिस जोश खरोश के साथ आप ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, उससे तो लगता है कि हम नई कहानियों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे बच्चों में क्या देशभक्ति है, क्या जज्बा है उनके डांस का, क्या कविता में उनके बल है। मुझे एक जैन कवि की एक किताब याद आ जाती है जिन्होंने बड़े शिद्दत से लिखा था कि हम कम से कम 1000 प्रतिभाओं का रोज कत्ल करते हैं। मुझे जैन मुनि से हिंसा की किताब के बारे में सुन के बड़ा अजीब लगा, पर जब उसको पढ़ा तो उसमें पता चला कि यस, जो पेरेंट्स, यहाँ तक कि जो माताएं अपने बच्चों को रोज घर में कहती हैं तेरे को कोई लेना देना नहीं, तेरे को पढ़ाई करनी है, अपना कैरियर बनाना है, देशभक्ति, ये सब बड़े लोगों के काम, उस बच्चे का जमीर उसी दिन मरने लगता है। ये बच्चे इतने बबलिंग से, ये इतने इमोशनल बच्चे जो गा रहे थे, इनकी भावनाएं ग्रेजुएट होते ही धीरे धीरे मरने लगती हैं। एंड देयर इज नो प्रोग्राम इन आवर नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो इमोशनल बिल्डिंग करता हो। देयर इज नो प्रोग्राम जो इस नस नस में ये टीका लगाता हो कि कंट्री फर्स्ट। आज आपकी एक बच्ची भाषण प्रतियोगिता में सुबह बहुत अच्छा बोल रही थी, रोटरी में मैंने उसके हाथ से सुना, व्हाट ए कंट्री वी आर, माय कास्ट फर्स्ट, माय रिलीजन फर्स्ट, माय विलेज फर्स्ट एंड माय कंट्री एट लास्ट। आपके उसके स्कूल की बच्ची की स्पीकर के लिए मैं सैल्यूट करता हूं कि इनकी नस नस में यही भावना भरी जानी चाहिए कि माय कंट्री फर्स्ट, माय कंट्री फर्स्ट। और 15 अगस्त हमें ये सिखाता है। हमसे 20 किलोमीटर दूर सोहना है। हमारे आजादी के दीवानों को वहां पर बैल की जगह जोता जाता था, घट में और चूना पिसाया जाता था। हमारे आजादी के दीवानों को मेरठ के चौरंगी मैदान में फांसी दे के लटकाए रखते थे 100 दिन तक उनकी बॉडी, ताकि दूसरे लोग देखकर आजादी मांगने की सोचे ही नहीं। इनको जब ये कहानियां सुनाते हैं तो बच्चे कई बार कहते हैं ऐसा कभी होता है क्या, क्योंकि उन्होंने कभी पराधीनता का दुख देखा ही नहीं है। उनको 3 दिन नेट नहीं चले ना, 5 दिन कोई लाइक ना करे ना फेसबुक पे, तो सुसाइड कर लेते हैं, और अच्छे कर लेते हैं। मैं परसों एक जूम मीटिंग में बात कर रहा था किसी पिता से कि तुम्हारा पसंदीदा हीरो कौन है, या तुम्हारे बच्चों का पसंदीदा हीरोइन कौन है। तो उन्होंने हीरोइन का नाम तो नहीं बताया, उन्होंने कहा मेरी पसंद का हीरो सुशांत राजपूत या संजय दत्त था। मैंने उनके पिता से एक ही क्वेश्चन किया, व्हाई नॉट यू आर द हीरो ऑफ योर फैमिली। तुम क्यों नहीं हो अपने परिवार का हीरो? उन लोगों को क्यों बनाते हो जो 1 मिनट में मुसीबत आने पर आत्महत्या कर लेते हैं? उन लोगों को क्यों बनाते हो जो देश की जेलों में आधा सा जीवन काट चुके हैं? काइंडली ऑल पेरेंट्स अगर इस मीटिंग में भी सुन रहे हैं तो बी हीरो ऑफ योर फैमिली, बी हीरोइन ऑफ योर फैमिली। हमारे शेखावाटी में कहावत प्रचलित है पुराने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि 10वीं पास गांव से गियो और BA BCom काम से गियो। यानी हमारी एजुकेशन ये सिखाती है कि 10वीं पास करने के बाद पैंट शर्ट क्या पहन लिए, मैं कोई मजदूरी का काम नहीं कर सकता। ग्रेजुएट होने के बाद कोई पक्का वो बायोडेटा लेके अपनी नौकरी के लिए ढूंढता रहता है कि ना ये बाकी काम है ना, ये मेरे काम का नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि 12 अगस्त को पूरे देश ने हमारे बड़े बड़े मनीषियों को सुना, एजुकेशन अलग चीज है, स्किल डेवलपमेंट अलग चीज है। You may be PhD, you may be double PhD, you may be double MAd, पर अगर आपको स्किल नहीं है बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की, आप एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते। अगर मैं एक डॉक्टर हूं, 20 डिग्री लेके बैठा हूं, लेकिन मैं केवल गोली दवाइयां ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूं। डेवलप द स्किल ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने जो नई पॉलिसी भारत को दी और भारत ने हम सबको दी, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें 10+2 सिस्टम को 5+3+3 कर दिया गया है, उससे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। और हमें लगता है कि हमारी अर्ली चाइल्डहुड, हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग,
हमारे एग्जाम्स के नंबरों का जो पैटर्न है वो और रेगुलेशन बदलेगा। मुझे बहुत हंसी आई पिछली दफा जब टीचर्स की एग्जाम होने लगी और बिहार सरकार में 93% टीचर्स उस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में फेल हुए। वहां के मुख्यमंत्री से पूछा मीडिया ने कि सर ये तो बड़ा बवाल हो गया, 93% टीचर्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, सरकारी टीचर्स की बात कर रहा हूं। उनका नहीं, तुम मीडिया बहुत नेगेटिव छापता है, जो 3% पास हुए हैं उनका भी तो जिक्र करो ना, जो 3% पास हुए उनका भी तो जिक्र करो ना। आप जानते हैं हम कैसे एक एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहे हैं, 70 साल से रन कर रहे हैं। द लास्ट एजुकेशन पॉलिसी केम इन 1986, जब इलेक्ट्रॉनिक्स से हर साल सिलेबस बदल रहा है, हर साल स्किल्स बदल रही हैं, चैलेंजेस बदल रहे हैं, तो हम क्या 50-50 साल में, 30 साल में एजुकेशन चेंज करेंगे? एक मिस्त्री का बच्चा 1 साल में ही मिस्त्री बन जाता है। एक साइकिल सुधारने वाला बच्चा साइकिल सुधारने लग जाता है 1 साल में। बेरोजगारी हमारे देश में इसलिए नहीं है कि एजुकेटेड कम है, बेरोजगारी इसलिए कि स्किल्ड कम है। आज का जो हेल्थ के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला that we are going for a digitalized health program of our country, तो मुझे लगा we are already prepared for it। अभी तो बहुत सारे पेरेंट्स अपना जूम कनेक्शन अपने बच्चों से जुड़वाते हैं, अपना फेसबुक लाइव अपने बच्चों से जुड़वाते हैं। सो दिस इज ए अमेजिंग टाइम जब बच्चे अपने माँ बाप को पढ़ा रहे, बट वी एक्सेप्ट इट। 50 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड से कवर हो जाएंगे। पर क्या ये हेल्थ स्टेटस ही रहना है हमें, या एक स्वस्थ भारत के निर्माण का कुछ और सिखाया है कोरोना ने? जी, दवाइयां, इंजेक्शन, अस्पताल है ही नहीं भारत में जो 130 करोड़ के लोगों की स्वस्थ बॉडी क्रिएट कर सके, स्वस्थ माइंड क्रिएट कर सके, और स्वस्थ आत्मा की तो बात ही अभी सिलेबस से बाहर है। गीता जैसे ग्रंथों को तो हमारी सेक्युलर स्कीम ने बाहर निकाल दिया है सिलेबस से। गीता विच इज बीइंग टॉट इन ऑस्ट्रेलिया, विच इज बीइंग टॉट इन रशिया, विच इज इन सिलेबस इन जर्मनी, द साइंस ऑफ लाइफ। मैं उन बातों पर नहीं जाता, पर अगर हमें आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाना है तो जो बच्चे आपके 5th क्लास में हैं, जो 8th में हैं, जो 10th में हैं, उनका हेल्दी इंडिया का मिशन क्रिएट होना चाहिए उनके थ्रू। हम सब ने देखा है कि देशभक्ति यही नहीं है कि बॉर्डर पे जाओ और गोलियां चलाओ, देशभक्ति ये भी है कि घर में रहो और मास्क लगाओ और सैनिटाइजेशन करो। घर की देशभक्ति ये भी है कि अपने लगाए हुए मास्क, अपनी कैप और अपना बायोमेडिकल वेस्ट कचरा सड़क पे ना फेंक दो जिससे कि दूसरे लोग इन्फेक्ट हो। देशभक्ति ये भी है कि आप कोरोना पॉजिटिव से ठीक हो गए हैं तो अब जाके प्लाज्मा डोनेट करें। आज दिल्ली में 140 डोनेशन और गुड़गांव में मात्र 12 डोनेशन ये दिखाते हैं कि हमने एक बहुत ही स्वार्थी नागरिकों को जन्म दे रखा है जो देश से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो कुछ न कुछ कारण ढूंढ ही लेते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कमाल का स्कूल है आपका परिवार। इतने लॉकडाउन के बाद, इतने चैलेंजेस के बावजूद भी आप रेगुलर टच में हैं। मैं इस लॉकडाउन में भी प्रेसिडेंसी में गया तो मैंने आपके टीचर्स को वहां पढ़ाते हुए देखा, कंप्यूटर पे काम करते देखा। मैं तो सोच रहा था EMI कैसे जाती होगी, इतने बड़े सेटअप, इतना बड़े टीचर्स की सैलरी कैसे जाती होगी। लेकिन फिर भी आज आपने मुझे आमंत्रित किया है तो कहने को कुछ बात कहनी ही थी। उसी गीत की एक पंक्ति में पुनः कहता हूं कि तेरी खुशबू में भूल जाऊं, नदियों में पानी बन के बह जाऊं। भला ऐसे व्यक्तित्व कब क्रिएट होंगे अगर हम बात नहीं करेंगे तो? We have converted Independence Day celebration into a ritual. We have converted our Republic Day celebration into a ritual. कुछ VIP जाएंगे, कुछ इनाम बांटेंगे, कुछ पोशाकें होंगी, कुछ डांस होंगे और ठीक है। डांस देखने के लिए संख्या बहुत भारी भरकम हो जाएगी, लेकिन जिस दिन आपका कोई एक टीचर देशभक्ति की डिमांड करेगा, प्लाज्मा की डिमांड करेगा, ब्लड की डिमांड करेगा तो संख्या 25 रह जाएगी। अगर ये चैलेंज हमारे सामने है तो हमें स्वीकार करने पड़ेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यूनिसेफ कहती है कि भारत में लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज्ड
हेल्थ स्टेटस है। हमारी 70% माताएं और बहनें आयरन डेफिशिएंसी की शिकार। हमारी हाईली एजुकेटेड माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने में शर्म महसूस करती हैं, फिगर बिगड़ जाएगा ऐसा महसूस करती हैं। कोरोना ने सिखाया है माता का पहले 3 दिन का दूध जिंदगी भर की एंटीबॉडीज पैदा करता है। कोरोना ने सिखाया है माता के द्वारा सिखाए हुए देशभक्ति के और वीरता के गीत बचपन में, जब बच्चा बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं था, शिवाजी की तरह मरने तक याद रहते हैं। तो टीचर से भी पहले जो माताएं घर में हैं, प्रोबेबली मुझसे आप सहमत होंगे कि वो हमसे भी बड़ी टीचर हैं। और कई बार आप नोट करते होंगे कि पेरेंट टीचर मीटिंग में दोनों में से एक ही आता है, या तो पिता आता है या तो माता आती है, और उनकी संख्या भी बहुत थोड़ी सी ही होती है। वो आते हैं तो टीचर से झगड़ा करने आते हैं, मेरे के नंबर क्यों आए, ये तो इतना अच्छा था, ये तो इतना बढ़िया था। एक सरकारी IAS अधिकारी अपने बेटे को लेके परसों मेरे से मिलने आए जयपुर से। उनका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, IIT में सेलेक्ट हो गया है, विदेश से उसके अपॉइंटमेंट लेटर आ गए हैं। मैंने कहा आप लॉकडाउन में ये जहमत क्यों उठाई? कहते हैं भाई साहब इस बच्चे को समझाओ, IITian तो हो गया है, टॉपर हो गया है, 50 लाख का पैकेज भी मिल गया है, पर ये 6-6 महीने में घर से बाहर निकलता है। इसके राम राम पड़ोसी से भी नहीं है, इसकी बहन से भी गुस्से में बात करता है। मुझे ये चिंता है कि हमने इसको योग्य बनाया है या अयोग्य बना दिया है। आप में से भी बहुत लोगों को ये चुनौती अपने विद्यार्थियों से मिलती होगी कि हम उनको लायक बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। इसलिए मदर मिल्क फीड, मदर चाइल्ड हेल्थ, योगा, आयुष के काढ़े, अगर इंग्लैंड की एक छोटी सी बायोटेक की दुकान इन दिनों में हाईएस्ट बिजनेस कर सकती है, अगर हिंदुस्तान की हल्दी को लोग दवा की तरह दूध में मिला के पी सकते हैं, अगर हिंदुस्तान की काली मिर्च भी वायरस की दवा बन सकती है, अगर हिंदुस्तान की गिलोय जिसको कोई नहीं पूछ सकता था उस पर वर्ल्ड ओवर रिसर्च हो सकता है, तो जो 100 स्टार्टअप आयुष डिपार्टमेंट ने दिए हैं उनको हमारे युवा उनको चुनना चाहिए और हर 15 दिन में एक रिसर्च आनी चाहिए कि हाँ मेरी तुलसी में दम है, मेरी गिलोय में दम है। भारत किसानों का देश है, हम सब कंप्यूटर पर नहीं चला सकते, हम सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन अगर भारत की एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और किसान होने पर गौरव करने का मानस पैदा कर दिया जाए, तभी तो हम कह पाएंगे कि तेरे खेतों में हम लहलाएं, तेरे खेतों में हम लहलाएं। सच्चाई तो ये कि हम में से कोई भी बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। सच्चाई तो ये कि हम रोज गेहूं खाना चाहते, चावल खाना चाहते हैं, पर किसान नहीं बनना चाहते, क्योंकि किसान बनना इस किसान प्रधान देश में जिल्लत का काम हो गया। केरल ने बहुत बेहतरीन डेवलप दिया। वो जब आप कभी केरल टूरिज्म में जाएं तो वो आपको एज ए टूरिस्ट अपने पूरे खेत में घुमाएंगे, कहेंगे काली मिर्च है, ये अजवाइन है, ये हल्दी का पेड़ है, और आखिरी में जाके प्रोडक्ट्स के पास ले जाएंगे कि अब आप, चूंकि आपके पास खेत नहीं है इसलिए हमारे ये डब्बे ले जाइए। बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमने खेतों में कैसे अस्पताल खड़े कर दिए हैं। मैं आपसे आत्मा से शेयर कर रहा हूं, आप में से भी बहुत सारे लोगों का डॉक्टरों से, बड़े अस्पतालों से संबंध पड़ा होगा। इस कोरोना के दौरान मेरे परम मित्र 3-4 जो डायबिटिक थे, ओबेसिटी थे, जिनके पास 5-5, 10-10 लाख की हेल्थ पॉलिसीज थी, जो गौरव करते थे, वो 1-1 करोड़ में भी अपनी जान नहीं बचा पाए। 80-80 लाख देके वापस भिवाड़ी आए, वो नहीं आए, उनकी डेड बॉडी आई। यानी कि पैसा, हेल्थ पॉलिसी, ये हेल्थ की गारंटी नहीं है। मेक योर चिल्ड्रन हेल्थ कॉन्शियस राइट फ्रॉम द स्कूल एज। आपके बच्चे जब फुटबॉल खेलते हुए मुझे दिखते हैं
बैंड पर मार्च पास्ट करते हुए दिखते हैं, जब उनकी परेड में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे प्रेसिडेंसी परिवार के हर एक टीचर को सैल्यूट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आप एक रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं। जिस दिन हमने इक्वलिटी का, डिस्पैरिटीज का मिटाने का तरीका भारत के योग से सीख लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो अंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो आत्मा में है वही परमात्मा में है, उसी दिन हम अपने बच्चे को कहेंगे माई चाइल्ड इज होलिस्टिकली डेवलप्ड। और होलीइज्म में पैट्रियोटिज्म भी एक पार्ट है। मैं स्वतंत्रता दिवस पर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपने जो मुझे जोड़ा, मुझे समय दिया, उसके लिए नूतन मैम का, शालिनी मैम का, आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मनोज जी, पल्लवी जी, चेयरमैन सर, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा ही हमें मोटिवेट करते हैं, और सर मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपका परिवार जो प्रेसिडेंसी परिवार है वो आपकी कही हुई बातों को बिल्कुल आत्मसात करता है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं सर। हम ऑलरेडी इसमें काम करते हैं, लेकिन आपके मार्गदर्शन में और अच्छा करेंगे। और सर हम हमारे बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो मॉरल वैल्यूज और एजुकेशन पे बहुत ध्यान दें। और मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ शेयर करते हुए कि अभी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने सर वैल्यू एडेड एजुकेशन, जो इस्कॉन की तरफ से एक ओलंपियाड करवाया गया था, उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें सर गीता के और बाकी सब मॉरल वैल्यूज के एक बहुत बड़ी सीरीज चली थी जो बच्चों ने देखी थी। उसके बाद उनको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, एजुकेशन में मॉरल वैल्यूज में जाएं, फिजिकल एजुकेशन में जाएं। और हमारे स्कूल को बहुत गर्व है इस बात का कि हमने अपने देश को सैनिक भी दिए हैं, सीए भी दिए हैं, डॉक्टर भी दिए हैं और बेहतरीन खिलाड़ी भी दिए हैं सर। लेकिन अब वो स्वस्थ भी रहें, और जैसे आपने कहा तो सर हम ये ज़रूर शुरू करेंगे। मैं अपनी टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अपने बच्चों को एनकरेज करें that they start respecting the herbs of India and the things that you said about the Ayush department. तो जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनके बारे में भी टीचर्स बच्चों को और बताएं, ताकि उनकी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग हो, ताकि जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट उनकी बॉडी और जल्दी करें। Thank you so much, sir, for being here and for your kind words. Now, may I please request our manager, sir, Mr. Manoj Sharma, to kindly bless the children on this occasion. Our manager, sir, Mr. Manoj Sharma. Good afternoon, everyone. Thank you, Dr. साहब। आपके जो इतने सुंदर वर्ड्स से, शब्दों से आपने इतनी अच्छी बात बोली, इसके लिए इसी कारण से मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले भी हम जब भिवाड़ी जब आए थे, तो उस टाइम भी डॉक्टर साहब अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से ज्यादा समाज सेवा में लगे हुए थे। उनका हमेशा एक मोटो रहा, ग्रीन भिवाड़ी, क्लीन भिवाड़ी। जहाँ जरूरत पड़ी शायद अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, अपना काम छोड़ के भिवाड़ी के लिए जो ये काम करते हैं, जो समाज सेवा में लगे होते हैं। और जब हमें इनकी जरूरत पड़ी, जहाँ जरूरत पड़ी, रात को 12 बजे भी अगर हमने फोन किया इनको, डॉक्टर साहब की सेवाएं हमें हमेशा मिली और फ्री ऑफ कॉस्ट मिली। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, कि आपने जो समाज के लिए काम किया है वो रिमार्केबल है। आपको कोई उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, पर आप अपने काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते गए हैं। और ये इसी बात के लिए मैं आपको सैल्यूट भी करता हूँ कि आपने इंस्पाइट ऑफ खुद कोरोना पेशेंट होने के बाद हार नहीं मानी। अपने बेटे के साथ आपने जो लाइव वेबिनार्स करते रहे, मैंने उसको रेगुलर वॉच किया। मुझे ये बड़ी खुशी हो रही थी अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करते हुए, ये डॉक्टर साहब मेरे फ्रेंड है, मेरे गाइड है, मैं इनकी बात को फॉलो करता हूँ इनकी। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ना प्रेसिडेंसी के लिए बड़े सम्मान की बात है। और जब आज हमने डॉक्टर साहब से जब हमें रिक्वेस्ट करी फ्लैग होस्टिंग के लिए, तो उन्होंने एक शायद मिनट भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंसी को शायद पहचानते हैं। उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो आज थोड़ा सा एक पेड़ बनने के अग्रसर है। डॉक्टर साहब से हमारा कोई छुपा नहीं है, और डॉक्टर साहब ने जो बातें बोली, वो सारी बातें कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा थोड़ा पूरा करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं,
हमारे बच्चे हमेशा ग्राउंड पे होते हैं। इसी का कारण है कि आज हम भिवाड़ी नहीं, राजस्थान नहीं, इंडिया की नंबर 3 टीम काउंट होती है भिवाड़ी की प्रेजेंसी स्कूल से। और ऐसे ही हमने बड़े सैनिक और बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी हमारे स्कूल में प्रोड्यूस किए हैं। अभी स्कूल की बिगनिंग है, नया टाइम है, हम आपसे विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपकी जो जो आपने बातें बोली हैं उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको हमेशा ये जिम्मेदारी का साथ दिलाएंगे कि डॉक्टर साहब आपका स्कूल है, आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे आना है, बच्चों को ब्लेस करने के लिए आना है, क्योंकि आप जैसा मार्गदर्शक मिलना भिवाड़ी के अंदर बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट राजस्थान में मिलना मुश्किल है सर। और बच्चों, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये जो हमें आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, वेरी ट्रू। इस आज़ादी के लिए हमें तो शायद गिनती के 2, 4, 5, 10, 20 हमें देशभक्तों का नाम लें, लेकिन लाखों लोगों ने जिनको अपने नाम की लालसा नहीं थी, जिनको अपनी जान की लालसा नहीं थी, उनके अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इस देश के लिए जान दे दी। उन्होंने बगैर ये सोचे समझे कि ये देश हमें क्या दे रहा है, क्योंकि हम लोग की आज की जनरेशन जो है हमेशा ही पूछती है, अरे इस देश ने हमें क्या दिया है, हम क्यों इस देश के लिए कुछ करें। पहले आप अपने अंदर दिल में सोचिए कि आपने इस देश के लिए क्या किया, आपका क्या कर्तव्य था। आज अगर आप एक हिंदुस्तानी नहीं होते, शायद अगर आप 47 से पहले आप पाकिस्तान चले गए होते, तो आप किस देश में होते और आज किस देश में खड़े हैं। आप उस देश में खड़े हैं बच्चों, जिस देश ने वर्ल्ड की नंबर 2 पावर चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, इवन इस पैंडेमिक पीरियड में के अंदर की पूरा विश्व हिल गया। अमेरिका बातें करता रहा कि हम टिकटॉक बैन करेंगे, हम चाइना पे सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उनको विश्वास था कि देश की जनता उनके साथ है, उन्होंने ये कर दिया, क्योंकि हम एक हैं। इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज हमारा देश एक है। हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, सिख जैनिस की लड़ाई है, किसी की लड़ाई है, लेकिन नहीं, जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। ये हमने प्रूव किया, कर रहे हैं आगे। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब आज हमारे प्रधानमंत्री ने बोला आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर भारत आपके भिवाड़ी से बढ़िया एग्जाम्पल तो उसका हो ही नहीं सकता, कि भिवाड़ी के अंदर सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। अगर आप सोचिए, आप अपने देश का सामान ना परचेज करके आप अगर चाइना का, अमेरिका का या ब्रिटेन का सामान परचेज करेंगे तो किसको नुकसान होगा? आपका सारा पैसा आप अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट उनके मुकाबले 19 हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रोडक्ट परचेज करने से उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, कंपटीशन की भावना आएगी उनके अंदर, वो और इन्वेस्ट करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आपके देश को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कहीं ना कहीं ये हमें कसम खा लेनी पड़ेगी, नेक्स्ट 2 इयर्स, इस पैंडेमिक के बाद नेक्स्ट 2 इयर्स हम लोग ना कोई फॉरेन ट्रैवल पे जाएंगे, ना हम कोई फॉरेन चीज परचेज करेंगे, अनलेस कोई बहुत मजबूरी है, कोई कंपल्शंस है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन होती हैं, जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें परचेज करने में मजबूरी होती है हमारी। उसके अलावा जहां तक पॉसिबल हो सके अपने इंडियन व्हीकल्स यूज करेंगे। टाटा बड़ी अच्छी गाड़ी देता है, मारुति, मैं किसी की ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें अपने इंडियन प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पैसा हमारे देश के अंदर रहेगा, और उससे क्या है, हमारे देश के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, खुशहाली आएगी, हमारे सबके जेब में पैसा आएगा, किसानों की डेवलपमेंट होगी, लैंड की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस चीजों में छोटी छोटी बातें हैं, तो क्योंकि हम लोगों पे बॉर्डर पे जाके हर आदमी नहीं लड़ सकता, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हम लोग की भी जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी सर, और मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ। और मैं ये बात पूरे ओथ में बोलता हूँ कि मैं मैक्सिमम इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करूंगा आज के बाद, और इंडियन जगह पे ट्रैवल करने की कोशिश करूंगा, अनलेस कोई बहुत मजबूरी ना हो जहाँ पे इसका कोई ऑप्शन ना हो। तो बच्चों, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। स्वच्छ भारत में कितना काम हुआ, पर वो काम अधूरा है अगर हम उसको 6 महीने बाद भूल गए, या स्कूल से घर जाके भूल गए। आप जब सड़क पे चल रहे हैं, कोई आपको कचरा दिखता है तो आप उसको एक पॉलिथीन से साथ में रखें, उसको उठा लें, कोई बुरी बात नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी कोई छोटे लोग नहीं है, सब हमारे भाई हैं और हमारे बराबर के हैं, और आप सफाई करके आप मजाक का पात्र नहीं बनेंगे। आप ये काम करके आप देश के लिए एक वॉरियर बन रहे हैं, एक आर्मी के पर्सन बन रहे हैं। इसी तरह आत्मनिर्भर भारत, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ग्रीन भिवाड़ी, ग्रीन दिल्ली, ग्रीन इंडिया, आप करिए ना, छोटे छोटे पौधे लगाइए, पौधों को अडॉप्ट कीजिए। अपने स्कूल में इतनी जगह है, आप लगाइए, बच्चे पौधे लगाइए, करिए अपने देश के लिए। आप जो काम करना चाहे करिए, सोच के करिए कि जो आप काम कर रहे हैं
उससे आपका कोई भी रिसोर्स बाहर ना जाए, ये आज की जरूरत है। अगर बॉर्डर पे आर्मी वाले लड़ रहे हैं तो अंदर हमें लड़ना है, हम मिलके एक टीम बन के काम करना है। और आप देखिएगा ओवर एक कुछ पीरियड ऑफ 5 और 10 ईयर्स हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। सर हमने इस पर स्टडी किया है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप किया है गवर्नमेंट ने। और नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर ये स्कूल्स में जिम्मेदारी स्कूल की है, कानून तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन स्कूल्स ने अगर इसको ढंग से इम्प्लीमेंट किए तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। 5, 3, 3, 4 ईयर्स बहुत अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। और मैं आपको एश्योर दिलाता हूँ कि प्रेजेंसी स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं भागेगा। मेरी टीचर्स, जैसे आप डॉक्टर्स, पुलिस वाले, आर्मी वाले वॉरियर्स हैं, मेरी टीचर्स भी कहीं ना कहीं कोविड वॉरियर्स हैं। और ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के भिवाड़ी और देश के लिए आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई। अपने घरों में बच्चों, अपने पेरेंट्स को अगर वो आज लाइफ नहीं है तो उनको भी हमारी तरफ से विशेष दीजिएगा, क्योंकि ये ईद और दिवाली से बड़ा त्योहार है हमारे देश के लिए। हम ईद नहीं बनाएंगे चल जाएगा, हम दिवाली नहीं बनाएंगे चल जाएंगे, लेकिन 15 अगस्त बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ना हिंदू का त्योहार है ना मुसलमान का त्योहार है, ये देश का त्योहार है और देशवासियों का त्योहार है। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। और हम सब टीचर्स, सर आपने हमें वॉरियर कहा, तो ये वॉरियर्स हमेशा फ्रंट में आगे फ्रंट फुट पे खेलेंगे सर, और हम अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। वी आर ऑल कमिटेड टू प्ले द रोल ऑफ नेशन बिल्डर्स, टू बी with our children no matter what. The learning process shall never stop. Thank you so much. Happy Independence Day to all of you, and my deepest of regards and thanks to our chief guest Dr. Roop Singh. Sir, you are a family member and we are proud of you, sir, and the great work that you are doing, आपकी शोभा नहीं सर, वो हमारी शोभा है क्योंकि आप हमारे हैं. Thank you so much. And sir, we pray to God for your long and healthy life, so that you continue to motivate and help people like us. Thank you so much. Thank you, teachers. Very well done, children. I'm really happy with the wonderful program. Sir, ये सारा program